Hello students and welcome to the fourth lecture of definite integral. In the last class we discussed about some properties of definite integral. Okay, and we did some problem as well. Okay, in this class we are going to discuss few problems about related to the properties that we have studied in the last class. And first let us quickly revise the properties that we have studied in the last class. The first property 1 is that a to b f of x dx is equals to a to b f of a plus b minus x dx. Okay, a to b f of x dx is equals to a to b f of a plus b minus x dx. The second property we have studied that माइनस इसका एक स्पेशल केस था, दैट इज 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी माइनस a to a f of x dx minus a to a f of x dx is equals to 2 times 0 to a f of x dx if f of x is even function and 0 if f of x is odd functions. Okay, so minus a to f of x dx is 2 times 0 to a f of x dx if f of x is even function and 0 if f of x is odd functions. Then the third property we discussed, third property we discussed 0 to 2a f of x dx is equals to 2 times 0 to a f of x dx if f of condition f of 2a minus x is equals to f of x and 0 if the condition is f of 2a minus x is equals to minus of f of x. Okay, 0 to 2a f of x dx is equals to 2 times 0 to a f of x dx if f of 2a minus x is equals to f of x and 0 if f of 2a minus x is equals to minus of f of x. And the fourth property you have studied, the 0 to nt f of x dx is equal to n times 0 to t f of x dx. Okay, where f of x is a periodic function, of with period t. ये f of x एक periodic फंक्शन है जिसका पीरियड t है. अगर f of x एक periodic फंक्शन है जिसका पीरियड t है तो 0 to nt f of x dx is equal to n times 0 to t f of x dx. ओके, ये हम प्रॉब्लम डिस्कस किए थे. नाउ अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स, लास्ट क्लास में भी कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, इस क्लास से शुरू करते हैं विथ सम प्रॉब्लम. ओके, let us discuss this whole lot of problem. The first problem is 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta d theta. 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta d theta. ओके, सो यहाँ हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे. कौन सा वाला प्रॉपर्टी कि वो स्पेशल केस 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. ओके, तो ये प्रॉपर्टी यूज करने पे ये 0 to pi by 4 log of 1 plus tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे, pi by 4 minus थीटा d थीटा. ओके, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाय 4 माइनस थीटा. अभी
tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का एक फॉर्मूला होता है। tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। ओके, तो फर्स्ट इसको हम मान लेंगे I, दिस इज I, ये आपका इक्वेशन 1 भी मान लो। ओके, सो दिस इज 0 to पाई बाय 4, ये प्रॉपर्टी यूज किए तो थीटा की जगह हम लिख दिए पाई बाय 4 माइनस थीटा। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द फॉर्मूला of tan pi by 4 minus theta, that would be log of 1 plus 1 minus tan theta by 1 plus tan theta. Okay, then 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta plus 1 minus tan theta, इसको ऐड कर लिए दोनों को तो एलसीएम जाएगा 1 plus tan theta d theta. tan theta and tan theta get cancel out, so 0 to pi by 4 log of this is 2 by 1 plus tan theta. ओके, द फॉर्मूला ये होता है लॉग का कि log a by b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to pi by 4 log 2 माइनस log of 1 plus tan theta। तो कि यहाँ भी इंटीग्रेशन है, दोनों में इंटीग्रेशन होगा तो इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 0 to pi by 4 log 2 माइनस 0 to pi by 4 log 1 plus tan theta d theta, यहाँ भी d theta ही है। ओके, तो ये देखो ऐसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया। देन दिस इज नथिंग बट ये सब i बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू दिस मच, एंड इसको तुम गौर से देखो। ओके, लुक एट केयरफुली, सो दिस इज 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta d theta, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4 log 1 plus tan theta d theta, मतलब ये दोनों सेम है, दिस इज सिमिलर एज द इक्वेशन 1, मतलब ये हमारा i है। तो i इज इक्वल्स टू 0 to pi by 4 log 2 d theta माइनस i। यस, i आएगा लेफ्ट साइड में तो ये बन जाएगा 2i। सो 0 to pi by 4 log 2 तो कांस्टेंट है हमारा, log 2 इज ए कांस्टेंट, सो 0 to pi by 4 d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, d थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, तो थीटा फ्रॉम 0 to pi by 4। ओके, फ्रॉम 0 to pi by 4, तो दिस बिकम्स log 2 into pi by 4 minus 0, so the answer is pi by 4 log 2। ये लेकिन 2i बराबर pi by 4 माइनस log 2 है, so i is equals to pi by 8 log 2, तो i is equals to pi by 4 log 2। so हमारा आंसर ये है कि 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta d theta is equals to pi by 8 log 2 is equals to pi by 8 log 2। तो यही हमारा आंसर है, दिस इज योर आंसर। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आई होप यू गेट इट। ओके, देन मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज सिमिलर नहीं, कुछ एक दो स्टेप के बाद इट इज इक्वल टू एग्जैक्टली सेम एज द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एग्जैक्टली सेम एज द क्वेश्चन नंबर 1। तुम क्वेश्चन नंबर 1 को अगर ठीक से समझ में आया है आपको, दिस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है भाई, 0 to 1 log 1 plus x by 1 plus x square dx। ओके, हम पहले सब्सटीट्यूट करते हैं कि x इज इक्वल्स टू पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। इफ x इज इक्वल टू tan थीटा then dx become secant square थीटा d थीटा। ओके, secant square थीटा d थीटा। ओके, सो पुट करने के बाद क्या हो रहा है देखो, हम दिस
I becomes, let this is I, so I is equals to लिमिट चेंज करेंगे। ओके, लिमिट चेंज हम करेंगे, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं कि यहाँ लिमिट चेंज करेंगे। I इज इक्वल्स टू 0 टू, पता नहीं हमें क्या है, log 1 प्लस टेन थीटा करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा बाय यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या लिखेंगे भाई, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, लिमिट क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू टेन थीटा लिए हैं, द वैल्यूज ऑफ x इज लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, x 0 होगा तो टेन थीटा 0 होगा, टेन थीटा 0 होगा तो थीटा कितना 0, x इज इक्वल अगर पाई बाय 4 है, सॉरी x इज इक्वल टू अगर x इज इक्वल टू अगर 1 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, so tan theta is equals to 1, so theta is equals to pi by 4, so this is limit is from 0 to pi by 4. Okay, and 1 plus tan square theta is secant square theta, so 1 plus tan square theta and secant square theta get cancels, तो कितना बचा 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta d theta। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, वही एग्जैक्ट सेम है, सो दिस इज नथिंग बट पाई बाय 8 log 2 एट द प्रीवियस क्वेश्चन, ओके, बाय द प्रीवियस क्वेश्चंस। समझ में आया? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, ओके। Moving on to our third questions. मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 0 टू पाई x dx बाय 1 प्लस साइन x dx। सो 0 टू पाई है x dx बाय 1 प्लस साइन x dx, ओके, सो इज इक्वल्स टू नथिंग बट, हम फर्स्ट वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि 0 टू a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx, तो x की जगह में हम लिखेंगे a minus x, लिमिट सेम होगा तो x की जगह में क्या लिखेंगे a minus x, so a minus x dx by 1 प्लस, सॉरी a तो थोड़ी है, a की जगह कौन है पाई, पाई माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, तो ये कितना बन गया 0 टू पाई, दिस इज पाई माइनस एक्स डी एक्स, इसको आई लिए हैं, डोंट फॉरगेट ये, ओके आई, दिस इज आई, तो पाई माइनस एक्स प्लस 1 प्लस साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस साइन थीटा, सो दिस इज साइन एक्स, ओके। इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये 0 टू पाई बाय पाई डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ओके, ये दिस इज इक्वल्स टू आई, तो आई इज इक्वल्स टू क्या था कि 0 टू पाई एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस साइन, सो दिस इज नथिंग बट आई, इसको हम आई लिख सकते हैं, so I is equals to 0 to pi dx by 1 plus sin x minus I, so ये I इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2i is equals to 0 to pi dx by 1 plus sin x, okay, pi dx plus 1 plus sin x। अभी देखो, so 2i is equal to 0 to pi dx by 1 plus sin x,
2i इज इक्वल्स टू, पाई को बाहर लिख लो, ये 0 to पाई dx बाय 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0 to पाई, दिस इज 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स is 1 minus sin square x, that is cos square x dx. So pi, this is 0 to pi integrations 1 by cos square x is secant square of x minus sec x tan x, okay, dx. So pi into इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक का तो होगा tan x और एक का होगा sec x tan x. इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक. सो पाई इंटू, पहले पाई पुट करो, तो पाई पुट करने से क्या होगा, 10 पाई इज 0 माइनस 0, ये भी 0, अगर 0 पुट करेंगे तो 10 0 इज 0 माइनस sec 0 tan 0, जो भी हो सब 0 हो रहा है. Okay, so everything is 0, so pi into 0 equals to 0 is your answer. Okay, so so 0 to pi इंटू 0, इसका sec square x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x. ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक है. सो पाई इंटू 10 0 इज 0, सॉरी 10 पाई इज 0, और sec पाई इज cos पाई 1, तो sec पाई माइनस 1 minus 10 0 is 0 and sec 0 is 1. So obviously pi into this is 1 और माइनस माइनस प्लस ये भी हो गया 1, तो 2 पाई आपका आंसर है. तो 2 पाई, दिस इज 2i is equals to 2 पाई, so i is equal to basically pi, so pi is your answer. ओके, यहाँ पे 2i था ना हमेशा, 2i is equals to pi, so i is equals to, sorry 2i is equals to 2 pi, so I is equals to pi. Pi is your answer. So pause the video to note it down. So moving on to question number 4. Okay, this is very important questions. very important questions. ओके, ये क्वेश्चन को पूरा ठीक तरह से समझ जाओ, बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत प्रॉपर्टी यूज हुआ है, वेरी इजी, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 4. सो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 ln ऑफ sin x dx. ओके, सिर्फ एक बार समझाऊंगा, ठीक से समझो. इससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, वेरी इजी है, इससे सब रिलेटेड है. तो 0 to पाई बाई 2 ln sin x dx. सो 0 to, यहाँ हम प्रॉपर्टी फास्ट यूज़ करेंगे कि वो वाला 0 to a f of x dx इज इक्वल्स टू 0 to a f of a माइनस x dx. ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. सो इट विल बी 0 to a, इसको i ले लेते हैं. सो 0 to a, सॉरी 0 to a तो थोड़ी है, पाई बाई 2 ln ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस x dx. सो इट बिकम्स 0 to पाई बाई 2 ln ऑफ cos x. ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है. ओके, जैसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है. तो अभी हम ऐड करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. सो इट बिकम्स, ये भी i है, दिस इज ऑल्सो i. सो आवर 2i बिकम्स 0 to पाई बाई 2
दोनों केस में 0 to π/2 है, तो एक साथ डायरेक्ट लिख देता हूँ ln sin x प्लस ln ऑफ cos x dx. ओके, सो 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 ln ऑफ sin x cos x. ओके, ln ऑफ कितना होगा, sin x cos x होगा. अभी हम क्या करते हैं, एक 2 sin x cos x जनरेट करेंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 एक डिवाइड करेंगे. ओके, डोंट कंफ्यूज, यहाँ ये log sin x cos x है कि अगले स्टेप में अगर लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है. ln sin x cos x, यहाँ पे हम 0 to π/2 ln sin x cos x में 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड होगा. तो जो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 sin x cos x बिकम sin 2x हो जाएगा. ओके, दिस बिकम्स, सो 2i बिकम्स log sin 2x by 2, 0 to π/2. So this is nothing but 0 to π/2. Okay, ln of sin 2x minus ln 2. ln 2 क्यों हो गया? ओके, why ln 2? सो देखो log ऑफ a माइनस बी, एक log ln सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ln कर दो. ओके, सो 0 to π/2 ln sin 2x by 2 ln a by b is equals to ln a minus ln b. ln a by b, ln a by b is equals to ln a minus ln b. यही प्रॉपर्टी से ये ln sin 2x minus ln 2 हो गया. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 0 to π/2 ln ऑफ sin 2x माइनस 0 to π/2. ओके, 0 to π/2 ln 2 dx. सो दिस इज नथिंग बट 0 to π/2 ln sin 2x माइनस ये कितना, ln 2 तो कांस्टेंट है. ओके, ln 2 इज योर कांस्टेंट और ये आपका कितना हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to π/2. ओके, डायरेक्ट लिखते हैं ये ln 2 π/2 ही हो जाएगा. दिस इज नथिंग बट x π/2 माइनस 0 कितना होगा, π/2. आई होप आप समझ में आया होगा. ये खुद ट्राई करना, नहीं तो ln 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2π, dx का इंटीग्रेशन x है और ये 0 to π/2 है, तो x की जगह π/2 माइनस 0, तो ln 2 π/2 है. अभी इसको कंसिडर करो. नाउ पुट, ओके, पुट 2x इज इक्वल्स टू t पुट करते हैं. अगर 2x को t पुट करते हैं तो क्या होगा, क्या 2dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा. यहाँ dx लिखा है, ठीक है, यहाँ भी dx, यहाँ तो खत्म हो गया, यहाँ dx है, तो 2dx बिकम dt हो जाएगा. ऐसा dx इज इक्वल टू dt बाई 2. देखो लिखो, अभी इसको कन्वर्ट करो. सो 2i बराबर ln sin t है, dx बिकम dt बाई 2 हो गया एंड इंटीग्रल्स बिकम, इंटीग्रल क्या हो गया, देखो ये x अगर 0 तो t भी 0, x अगर π/2 तो t कितना होगा, 2 इंटू π/2 दैट इज पाई. ओके, सो नाउ 2i इज इक्वल्स टू 1/2 को इधर ले आओ. सो दिस इज 0 to π ln sin t dt. देखो इसका एक एक स्टेप में एक एक आंसर है. ठीक है, आपको सपोज क्वेश्चन यही है कि ln sin x 0 to π/2 sin x dx है. आपको अगर एग्जाम में आ गया 0 to π/2 ln cos x dx, तो यही तो सेम है, बीच में यही आया कि नहीं आया. तो मैं इसका मतलब इसका भी इंटीग्रेशन अगर पूछा तो आंसर इसका जितना आएगा उसका भी उतना ही आएगा. अगर सपोज बीच में कहीं पर 0 to π ln sin t dt का आंसर क्या है, तो वही है, उसी टाइप से ही करना है आपको. ठीक है, इसलिए कंसेप्ट को समझो, बहुत जरूरी है.
अभी देखो ये 0 टू पाई लॉन साइन टी डी टी है, माइनस यहाँ पे माइनस था कुछ, ये लॉन टू पाई बाय 2, ओके, लॉन टू पाई बाय 2, ठीक है। तो लॉन, ये भी लॉन 2 इंटू पाई बाय 2 है। सो अभी हम क्या करेंगे कि एक प्रॉपर्टी फिर यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी? देखो इधर ध्यान से हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज कि 0 टू 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx। कंडीशन f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x होना चाहिए। अगर ऐसे कंपेयर करके 2a बिकम्स पाई, 2a बिकम्स पाई, तो a कितना होगा? पाई बाई 2। तो देखो f ऑफ 2a माइनस एक्स, f ऑफ मतलब साइन ऑफ t की जगह पाई माइनस टी लिख के देखो, ठीक है। तो साइन पाई माइनस टी साइन टी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी कैन राइट दिस इज हाफ इंटू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 लॉन साइन टी डी टी। सो 2 and 2 गेट कैंसल्ड, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ वेरिएबल वाला। चेंज ऑफ वेरिएबल मतलब समझते हो, यहाँ तक टी डी टी है, टी डी टी की जगह हम एक्स डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली। सो ऑब्वियसली 0 टू पाई बाई 2 लॉन, ठीक है। यहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लिख रहे हैं, ये भी छूट गया अभी तक, ये माइनस लॉन टू पाई बाई 2 भी है, ओके। ये यहाँ पे हम मिटा देते हैं आपको, ओके। आप ऑलमोस्ट डन, द प्रॉब्लम इज so 2i becomes चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे तो ये 0 टू पाई बाई 2 लॉन साइन एक्स डी एक्स माइनस लॉन 2 इंटू पाई बाई 2। सो दिस इज नथिंग बट i। सो 2i इज इक्वल्स टू i माइनस लॉन 2 इंटू पाई बाई 2। सो i इधर आएगा, तो i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉन 2 पाई बाई 2, माइनस ऑफ लॉन 2 इंटू पाई बाई 2, ओके। सो इसको और एक तरीका से भी लिखा जाता है कि ये पाई बाई 2 है इंटू माइनस ऑफ लॉन 2। माइनस ऑफ लॉन 2 मतलब माइनस अगर अंदर गया, लॉग के अंदर गया, तो ये 2 की पावर माइनस 1, मतलब यही प्रॉपर्टी की m log x इज इक्वल टू लॉग x की पावर m है, वही है कि 2 की पावर माइनस 1 मतलब हाफ। वी कैन राइट दिस इज पाई बाई 2 लॉन हाफ। ये भी होगा, माइनस लॉन 2 पाई बाई 2 भी ओके, पाई बाई 2 लॉन हाफ भी, ये भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट। सो हमारा आंसर जो 0 टू पाई बाई 2 लॉन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ओके, इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 लॉन 2 और माइनस लॉन 2 पाई बाई 2, और दिस इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू दिस। अब इसलिए ये नहीं मिटाया था आपके लिए, 0 टू पाई बाई 2 cos x dx, सॉरी लॉन ऑफ cos x dx, लॉन cos x dx। इसका भी आंसर वही है, 0 टू पाई बाई 2 लॉन cos x dx इज इक्वल्स टू बी पाई बाई 2 लॉन 2। जैसे कि एग्जैक्टली वही होगा, एग्जैक्टली वही होगा, बस यहाँ cos होगा, यहाँ साइन होगा, बाकी सारा सब कुछ सेम। ये साइन है, साइन रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ साइन, यहाँ cos और यहाँ cos ऑब्वियसली, ओके। तो अगर क्वेश्चन में आपका लॉन साइन एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाई 2 आए और 0 टू पाई बाई 2 लॉन cos एक्स डी एक्स आए, दोनों ही एक ही टाइप से होगा एंड दोनों का आंसर वही सेम है, एंड दैट इज पाई बाई 2 लॉन 2। ये आपका कुछ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में इसको एक रिजल्ट की तरह से भी मान लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन आया 0 टू पाई बाई 2 लॉन साइन एक्स डी एक्स, तो आपको याद होना चाहिए कि पाई बाई 2 लॉन 2, नहीं तो इतना बड़ा स्टेप करके आप वहीं पे निकाल नहीं सकते, ओके। एक क्वेश्चन के लिए आप ऐसे 10 मिनट नहीं दे सकते, इसलिए इतना प्रैक्टिस करो कि कुछ कुछ ऐसे रिजल्ट्स, एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाए, ठीक है। सो अभी आगे बढ़ते हैं 5th और 6th। 5th और 6th को मैं पूरा नहीं करूँगा, ठीक है, इससे रिलेटेड है, मतलब ये जब आएगा वहीं से छोड़ दूंगा, मतलब पूरा ही कर देंगे ऑलमोस्ट।
ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास यही है कि लिख देता हूँ और एक बार, डोंट वरी। जो लास्ट क्वेश्चन अभी हम किए थे, इसी क्वेश्चन में यही सीखने को मिला है कि 0 to π/2 ln sin x dx इज इक्वल्स टू 0 to π/2 ln cos x dx इज इक्वल्स टू π/2 इंटू ln ऑफ हाफ और माइनस π/2 इंटू ln 2, दोनों सेम है। ओके, दोनों ही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। π/2 ln हाफ और माइनस π/2 इंटू ln ऑफ ln 2। तो दिस इज आवर प्रॉपर्टीज। एक रिजल्ट, प्रॉपर्टी नहीं, एक रिजल्ट है जो कि हम यही क्वेश्चन से मिला। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत ही आसान कि 0 to 1 ln x by 1 minus x square dx इज इक्वल्स टू। तो अभी एक काम करते हैं कि x इज इक्वल्स टू पुट करो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट जब होता है तो x इक्वल क्या साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते हो, तो करो पुट, तो पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, सो dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अभी देखो ये अगर x 0 है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, x 0 मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा 0। x अगर 1 है तो थीटा कितना होगा, x 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/2, सो दिस बिकम्स 0 to π/2 ln साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा गेट कैंसल्स, so this is nothing but 0 to π/2 ln sin थीटा डी थीटा। अभी आप इस क्वेश्चन को जैसे किए थे उसी तरीके से करना, जो आंसर आ जाएगा आपका वही π/2 ln हाफ। ओके, सेम एज द फर्स्ट वन, सेम एज द प्रीवियस वन, प्रीवियस वन से पर एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वही क्वेश्चन नंबर 6। ये 0 to π, देखो और इससे पहले तुम्हारा बुक में क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट, ये प्रूव दैट दिया है, देखो प्रूव दैट 0 to 1 ln x by 1 minus x square is equals to π/2 ln हाफ। ओके, यही प्रूफ दैट दिया है जो कि हम अभी कर लिए। ठीक है, 0 to π x sin x dx, 0 to π x sin x dx आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे भाई, 0 to a f of x dx इज इक्वल्स टू 0 to a माइनस f of a माइनस x। तो कभी भी आपको मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब x के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट में इसको बाई पार्ट्स ही करना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में यही दिया हुआ है। ओके, ये ln sin x से बेसिकली दिया है, तो हमें ऑब्वियसली ये वाला प्रॉपर्टी मस्ट यूज होगा और एक i जनरेट होके उधर भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसको लेट i हम मानते हैं कि दिस इज i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π x ln sin x dx। तो यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 to π, x की जगह लिखेंगे पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स
ln of sin of pi minus x dx। तो 0 to pi minus x dx साइन पाई माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो ये तो रिकवर हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, लेकिन ये रिकवर नहीं हो पाएगा। dx क्या लिख रहा हूँ मैं, ln। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 0 to pi into ln sin x is pi ln sin x dx minus this is 0 to pi x ln sin x dx, x ln sin x dx। ये आएगा उधर, दिस इज नथिंग बट i, तो i दोनों भाई मिलके हो गया 2i। तो ये है पाई बाहर, 0 to pi ln of sin x dx, ln of sin x dx। ओके, अभी हम वो वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ तो बहुत है भाई, प्रॉपर्टीज़ आपको याद करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज़। याद करने से याद करोगे, देखोगे, और प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ओके उतना आसान होगा। यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ होगा 0 to 2a f of x dx इज इक्वल्स टू 2 times 0 to a f of a minus x, सॉरी f of x dx ही है। ओके, कंडीशन यही है कि f of 2a minus x इज इक्वल्स टू f of x होना चाहिए। थोड़ा सा कंपैरिजन करोगे तो यहाँ जो 2a है वो पाई है, तो a मतलब पाई बाई 2। तो कंडीशन चेक करो कि f of 2a माइनस एक्स दैट इज f of पाई माइनस एक्स, तो x की जगह में पाई माइनस एक्स पुट करके देखो। अगर हम पुट करेंगे तो f of पाई माइनस एक्स इज ऑब्वियसली f of x ही हो रहा है। ओके, सो वी कैन राइट दिस 2i इज इक्वल टू 2 सॉरी पाई तो ऑलरेडी है इंटू 2 times 0 to pi by 2 ln of sin x dx। सो एक है 2i इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 pi 0 to pi by 2 ln sin x। इसको लिख लिया होगा आई होप। सो देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये सब इम्प्लाइज दैट तो साइन है, तो 2 यहाँ लिख देता हूँ स्टेप। 2i इज इक्वल्स टू 2 pi times 0 to pi by 2 ln sin x dx। सो 2 get cancel, सो i is equals to pi, और ये लास्ट रिजल्ट में हम पढ़े थे दिस इज pi by 2 ln 2। सो pi into pi by 2 ln half, so ln half, और माइनस pi by 2 ln 2। सो दिस इज नथिंग बट i टाइम्स pi square by 2 ln हाफ। ये आपका आंसर है, और आंसर में भी माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 ln 2, ये भी आंसर होगा। ठीक है, जो बुक में क्वेश्चन दिया है यही क्वेश्चन दिया है एग्जैक्टली सेम। दिया कि क्वेश्चन यही भी हो सकता है कि प्रूव दैट 0 to pi x ln sin x इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 2 ln हाफ। ये प्रूव दैट वही सेम चीज़ है। लेकिन अगर ये देखो 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से कोई भी एक, अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली लॉन 0 to pi by 2 ln sin x dx की जगह ये मत लिख लेना। यहाँ से जो ये क्वेश्चन जैसे किए थे ऐसे ही एग्जैक्टली करना। समझ में आया? लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आया है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में है तो ये तो कुछ फॉर्मूला है ही नहीं, किसी भी बुक पे नहीं है, तो तुम ये थ्योरी कभी यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। यू हैव टू डू दिस मेथड। ओके, यही कोई किसी भी बुक में फॉर्मूला के हिसाब से नहीं दिया है कि 0 to pi by 2 ln sin x dx इज इक्वल्स टू दैट इज pi by 2 ln हाफ। ये फॉर्मूला के हिसाब से कभी दिया नहीं है। ठीक है, तुम चाहे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन में ये सब ट्राई कर सकते हो, एमसीक्यू क्वेश्चन में ये थ्योरी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको किसी भी ये केस में पता नहीं है तो आपको ऐसे कन्वेंशनल मेथड में आपको करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 7। आई होप यू गेट इट। क्वेश्चन नंबर 7,
7 is very easy. Question number 7, 0 to pi by 2 cos x minus sin x by 1 plus sin x cos x dx. Okay, so प्रॉपर्टी वही यूज करेंगे जो 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. so 0 to a I है, so I is equals to 0 to pi by 2 cos of pi by 2 minus x minus sin of pi by 2 minus x by 1 plus sin of pi by 2 minus x cos of pi by 2 minus x dx भी है. ओके, तो x की जगह में हम बराबर पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखिए, क्योंकि a की जगह यहाँ पाई बाई 2 दिया है, तो ये 0 टू पाई बाई 2 cos पाई बाई 2, ये बन गया sin x, ये बन गया cos x, ये बन गया 1 प्लस cos x, ये बन गया sin x dx. ये इक्वेशन 2 है, ये आपका इक्वेशन 1 है. अभी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं. अगर ऐड कर देंगे तो ये भी i है ना, तो i प्लस i तो 2i हो गया. बहुत अच्छा, 2i हो गया. इंटीग्रेशन दोनों सेम है, 0 टू पाई बाई 2. डिनोमिनेटर भी सेम है, 1 प्लस cos x sin x, 1 प्लस sin x cos x. तो सिर्फ न्यूमिनेटर को हम ऐड कर देंगे, तो दैट इज cos x माइनस sin x प्लस sin x माइनस cos x बाय 1 प्लस sin x cos x dx. तो sin x कैंसिल, cos x cos x, ये बन के 0. सो दिस इज 0. 2i इज इक्वल्स टू 0, सो i इज इक्वल्स टू 0. तो इसका आंसर है 0. अगर प्रूफ दैट भी यही इज इक्वल्स टू 0, तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस एक ही प्रॉपर्टी यूज करोगे, दोनों को ऐड कर देगा. देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की थोड़ा सा कंसेप्ट समझ गए, प्रॉपर्टी के बारे में समझ गए, देन आपको इसमें मतलब कब किस प्रॉपर्टी यूज़ करोगे ये तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. ओके, ठीक है. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका. क्वेश्चन है कि 0 to 1 x टाइम्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 100 dx. ओके, सो बेसिकली करना क्या है कि ये जो पार्ट को हम एक सिंपल टर्म बनाएंगे. ओके, तो एक ही वैल्यू 1 माइनस एक्स की 100 अगर ओपन करने जाओगे तो ये ब्लैक बोर्ड भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि करीब 101 टर्म होगा. ठीक है, 101 ही टर्म होगा, तो इसीलिए इसको ओपन तो नहीं कर सकते हम. इसलिए पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी. तो क्या बन गया, माइनस डी एक्स बिकम डी टी, माइनस डी एक्स डी टी बन गया. अगर x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक है, अगर x 0 है तो t कितना है, 1. If x is 0 then t is 1. If x is 1 then what is the value of t? 1 minus 1, that is 0. So integration becomes 1 to 0. And 1 minus x become t to the power 100. And x become what? X become 1 minus t, obviously, dt. Now it is minus x, इसके जगह माइनस डी टी लिखेंगे. माइनस आएगा बाहर, तो 0 to 1 t to the power 100 माइनस t to the power 0 to 1 थोड़ी है, 1 to 0 है, 1 to 0 t to the power 1 not 1. ओके, सो ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो. लिमिट को चेंज कर देते हैं. लिमिट ये प्रॉपर्टी यूज होगा a to b ऑफ x dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b to a f of x dx. अगर माइनस अंदर जाएगा कि माइनस अंदर से आ रहा है तो ये चेंज हो जाएगा, 0 to 1 t to the 100 माइनस t to the 1 not 1, ये हो गया dt. तो अभी देखो भाई, फॉर्मूला पुटअप करो, सिंपल इंटीग्रेशन करो, तो t की पावर 1 not 1 by 1 not 1
माइनस टी की जगह 102/102। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से लेकर के 1 तक। ओके, 0 से लेकर के 1 तक। तो 1 अगर पुट करोगे तो 1/101 माइनस 1/102। अगर 0 पुट करोगे तो 0 0 0 0 सब 0। तो ऑब्वियसली 102 माइनस 101/101 इंटू 102, इट इज 1/101 इंटू 102। ओके, तो वही आपका आंसर होगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो 1 कितना होगा रे, ये 100 प्लस 1 है, ये 100 प्लस 2 है, सो 10,000 प्लस ये दोनों मिलके हो जाए 300, 10,302, 10,302। Okay, this is the answer. So pause the video to note it down. Now moving on to our next questions. Next है question number 9, I guess this is 9. So 0 to 50 e to the power x minus box of x dx। ऐसे जो भी केस में 0 to 100, 0 to 50 कुछ इस तरह से इंटीग्रल दिया होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक पेरियोडिक फंक्शन होता है कि चेक कर दें कि f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस बॉक्स ऑफ x। ये हम किए थे, f ऑफ x प्लस 1 करो तो e की पावर x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 की पावर हो गया, तो दिस इज e की पावर x प्लस 1 माइनस बॉक्स ऑफ x, और ये माइनस 1, मतलब ये x प्लस 1 का बॉक्स क्या होता है, बॉक्स x प्लस 1 होता है, सो ये 1 1 कैंसिल, तो x माइनस बॉक्स ऑफ x। तो दिस इज ए पेरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 1। तो ये आपको याद होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू x माइनस बॉक्स ऑफ x होता है। ओके, एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज ए पेरियोडिक फंक्शन विद डिग्री 1। सो f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और इज इक्वल्स टू x माइनस बॉक्स x is a periodic function with डिग्री 1। ठीक है, तो डिग्री 1 वाले हैं तो ये प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन का पता है, 0 to n t f of x dx is equals to n times 0 to t f of x dx। ओके, तो n की जगह यहाँ 50 है, सो 50 टाइम्स 0 to 1 e की पावर x माइनस बॉक्स x dx। देखो, when x is in between, ओके, जब x 0 और 1 के बीच में होता है तो बॉक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है, तो बॉक्स x इज इक्वल्स टू 0। ओके, so we can write this is 50 times 0 to 1 e की पावर x, क्योंकि बॉक्स ऑफ x तो 0 हो गया। ओके, सो 50 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन e की पावर x है, 0 से लेकर 1 तक, 50 इंटू e माइनस e की पावर 0, दैट इज e माइनस 1। सो 50 इंटू e माइनस 1 इज योर आंसर। Okay, so 50 times e minus 1 is your answer. So that's it for today's class. आज के लिए बस इतना ही। In the next class आपका डेफिनेट इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। So bye bye, take care, see you in the next class.